अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? ठीक है मैं। हाँ ठीक है कि बाबा, अच्छे हो बोलो सब लोग। ऑनलाइन एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने फर्स्ट टर्म के सारे लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग सेकेंड टर्म के यूनिट 3 के लेसन्स में हमारे और पहले के 2 लेसन हो चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट with our Unit 3 lesson 3.3, 3.4, The Two Gentlemen of Verona. Okay, so you will enjoy this lesson, I hope. So I, Zarina Abdul Rahman Parkar, welcomes you on this online platform. आपकी स्कूल बंद है लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाई शुरू है, तो इसमें मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अब तक जितने भी लेसन्स पढ़ाए हुए हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे। आया है ना मज़ा अब तक के लेसन्स में? हमने जितने भी लेसन्स पढ़े। Yes, miss. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द लेसन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. ओके, सो लेट्स सी what is there in this lesson. So, good morning all of you. Good morning my dear students. आप लोगों की सुबह इस तरह से खुशगवार और अच्छी हो, मैं ये उम्मीद के साथ में लेसन स्टार्ट करती हूँ. सो जरीना अब्दुल रहमान परकार, कस्तूरबा क्रॉस रोड अपने स्कूल का नाम है. सो हम लोग आज यहाँ लेसन करने जा रहे हैं द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, राइट? So what is there in this lesson? Before that, we'll see a beautiful quote. हम अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे सेंटेंस से करते हैं. Where there's will, there's a way. Where there's will, there's a way. जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे राह निकल आती है. तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी पढ़ने की चाह थी, इसलिए देखो कैसे ऑनलाइन का रास्ता निकल आया. हम लोगों ने अगर दिल में सच्चे दिल से कोई अगर चाह रखी तो अल्लाह ताला उसमें रास्ते निकाल लेता है. सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन? You are going to learn new words, expressions, and enrich your vocabulary through reading. You are going to develop the values of dedication. डेडिकेशन क्या होता है ये आप समझोगे. हार्ड वर्क किसे कहते हैं? परसिवरेंस एंड टू नेवर गिव अप. कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. यू डोंट गिव अप. So try hard and hard. Okay. So today, see what is there in your lesson. Why I have told you that you are going to learn dedication, hard work, perseverance, and to never give up. So all this word you will understand when you will see this lesson. It's very interesting lesson. So, our lesson is The Two Gentlemen of Verona. Two Gentlemen of Verona. Verona is a city. Now you will see these two gentlemen. These are two gentlemen. Why they are known as gentlemen? You will see these are the small kids. छोटे बच्चे हैं, फिर इनको जेंटलमैन क्यों कहा गया है? सो बिकॉज ऑफ देयर एक्ट. वो जो काम कर रहे थे, वो काम उनका जो था, उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारी उठा ली थी, जैसे कि एक जेंटलमैन उठाता है, एक बड़ा आदमी अपने घर की जिम्मेदारी उठाता है. बिल्कुल उसी तरह से इन दो बच्चों ने अपने घर की जिम्मेदारी उठा ली थी. सो बिकॉज ऑफ दैट they are known as gentlemen. Though they are small kids, they are known as gentlemen. So now I'll show the city of Verona on the map. You might be learning maps in your geography lesson. So this is a map. See, it is Italy over here and Switzerland is over here and Bosnia, Austria. So in between all this, there is a Alp.
माउंटेन रेंज, दिस इज अ माउंटेन रेंज, ये माउंटेन रेंज है और इस माउंटेन रेंज के बिल्कुल नीचे, बेड ऑफ द माउंटेन, देर इज अ सिटी कॉल्ड वेरोना. So this is a map description of the city Verona. Now, see, this is a city, Verona. Now we'll say, how does this city look? This city is very beautiful. It is located just below the mountain range. See, this is a city just below the mountain range. So this is a city, beautiful city of Verona. Now, what is there in this lesson? A.J. Cronin has very well carved the idea of selfless help and explain the importance of dedication towards relationship in the story. The Two Gentlemen of Verona, the story revolves around the two boys named Nicola and Jacopo, who do numerous things to earn money, only to pay for their sister's treatment, who suffers from tuberculosis of the spine. Now we'll see what are the meaning of these words. A.J. Cronin is a writer of this lesson. A.J. Cronin is a writer of this lesson. So this gentleman has observed these two kids are doing a work of big people. So he named them gentlemen. So what he has did, carved an idea. What is the meaning of carved an idea? Create or establish an idea. See, these students are, these kids are very small, छोटे बच्चे हैं. फिर भी उसके दिमाग में क्या आइडिया आई? एजे क्रॉनिंग के दिमाग में उनको जेंटलमैन बुलाने की. क्यों जेंटलमैन बुलाया? क्योंकि वो बड़े इंसानों जैसा काम कर रहे थे. बराबर. सो these people are doing the work of big people. So because of that, they are known as gentlemen. Okay. So now let's see. So selfless help. What is the meaning of selfless help? See, here this person is doing selfless help because he is just helping that person. There is no aim behind it. Just he want to save the life of that person. So it is known as selfless help. And explain the importance of dedicated work. They are doing dedicated work towards relationship in the story. See the relationship we have relationship our siblings, our brother, our sister. So we have the good relationship. So this is an example of relationship of the these two brothers, the two gentlemen of Verona. The story revolves around the two boys named Jacopo and Nicola. These two boys, Jacopo and Nicola. And Jacopo, who do numerous things to the earn money. They were doing numerous things to earn money. अलग अलग चीजें करते थे कि कहीं से भी उनको पैसा मिले. ऐसे बहुत सारे काम वो करते थे. ओनली टू पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट. किस लिए कर रहे थे? उन लोगों को किसी भी तरीके से पैसे मिले ताकि वो अपने सिस्टर का ट्रीटमेंट कर सके. हु सफर्ड फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन. देखो, हमारी स्पाइन जो होती है, नॉर्मल स्पाइन ऐसी होती है. नॉर्मल स्पाइन हमारी ऐसी होती है, लेकिन जब ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है स्पाइन में, तो इस तरह से पूरी स्पाइन जो है वो मुड़ जाती है. So this is a disease of tuberculosis of spine, right? So you have got the normal spine, and when any person is having tuberculosis in the spine bends this way. So this is tuberculosis of spine. Now we'll see what is there in the next. The story begins with the narrator. Narrator means जो story बोलता है. Driving down the foothills of Alps. Foothills. Foothill यानी ये जो
पहाड़ है, पहाड़ के बिल्कुल नीचे का रास्ता जो होता है उससे लग कर उसको बोला जाता है फूट हिल. सो दिस इज अल्प माउंटेन एंड दिस इज अ फूट हिल ऑफ एल्प. सो फूट हिल ऑफ एल्प्स. Here is when he first encountered. This is Alp Mountain, foothills of Alp Mountain. I have shown you in the map. Here is the map of Verona. You have seen the city Verona, and it is located near the Alp Mountain at the foothill of Alp. So, what is the meaning of encounter? Encounter means meet face to face unexpectedly. अचानक हमारा किसी से सामना हो जाता है उसको बोला जाता है. Here is when we first encounter the two brother. कौन? नरेटर. नरेटर यानी जो कहानी बोल रहा है वो अचानक से इन दो लड़कों के सामने आ जाते हैं. द टू ब्रदर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरी. कब अचानक आते हैं वो सामने एक दूसरे के? जब वो दो भाई सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरी. वो दो भाई वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, ये देखो ये स्ट्रॉबेरी है, तो उन लोग स्ट्रॉबेरी जो है वो बेच रहे थे, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी बेच रहे थे, सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरी. इवन आफ्टर द ड्राइवर फॉरबिड्स द नरेटर. इवन आफ्टर द ड्राइवर फॉरबिट्स यानी डिसअलाउ. उनका ड्राइवर जो है वो उनको मना करता है, डिसअलाउ अलाउ नहीं करता है कि वो वाइल्ड फ्रूट्स ले. द नरेटर टू बाय द वाइल्ड फ्रूट्स. वो ड्राइवर उस नरेटर को वाइल्ड फ्रूट बाय करने से डिसअलाउ करता है, फॉरबिड करता है. फॉरबिड करना यानी मना करना, डिसअलाउ करना. ही बाइज द बिगेस्ट बास्केट. उसको मना करता है तो भी नरेटर क्या करता है, उनके पास से बिगेस्ट बास्केट, बस सबसे बड़ा बास्केट होता है वो खरीद लेता है, द बिगेस्ट बास्केट, एंड ड्राइव्स टुवर्ड्स द टाउन. और शहर की तरफ निकल जाते हैं. दिस सीन एम्फसाइज यानी रोशनी डालना, फोकस करना, स्ट्रेस अपॉन. ये सीन किस पे रोशनी डालता है? ऑन द फर्स्ट स्टेप of growing intimacy between the narrator and the two boys. ये बात किस चीज पर रोशनी डालती है कि इंटीमेसी यानी क्लोज रिलेशनशिप. हमको किसी से मोहब्बत हो जाती है, रगबत हो जाती है, क्लोज रिलेशनशिप हो जाती है, तो उस नरेटर की उस दो बच्चों से जो मोहब्बत पैदा होती है वो इस बात पर रोशनी डालती है कि उस ड्राइवर ने उनको मना कर दिया था, फिर भी वो बिगेस्ट बास्केट खरीदते हैं उसके पास से स्ट्रॉबेरी का, क्योंकि नरेटर देख रहे हैं कि ये बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं. नेक्स्ट डे द बॉयज आर फाउंड शाइनिंग शूज इन द पब्लिक स्क्वायर. अगले दिन देखते हैं कि वो बॉय दूसरों के शूज को पॉलिश कर रहे हैं, यानी शू पॉलिश का भी काम कर रहे हैं. तो ये देख के दिस अमेजेस, अमेज होना यानी इस तरह से एकदम ताज्जुब होना, अरे ये लड़के लोग ये भी कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी भी बेच रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, अरे बाप रे ये बच्चे ये भी कर रहे हैं. अमेज यानी देखकर ताज्जुब होना. नरेटर. दिस इज व्हेन they reveal the fact that they do numerous kinds of things to earn money. यानी इस तरह से इस बात से पर्दा हट गया. रिवील यानी शो, मेक, नाउ यानी हकीकत जानना, हकीकत का पर्दा फाश होना, इस तरह से. तो उसको बोला जाता है रिवील द फैक्ट that they do numerous kind of things. उनको पता लग गया कि वो बहुत सारी चीजें करते हैं, कभी फूल बेचते हैं, कभी फ्रूट बेचते हैं, कभी बलून बेचते हैं, कभी बिल्डिंग का काम करते हैं, कभी न्यूज़पेपर बेचते हैं. They do numerous kinds of things because they just want to earn money. Here the narrator is shown to develop a soft corner, जिसकी वजह से नरेटर को क्या हो रहा था, उनके लिए बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा था. फॉर देम इन हिज हार्ट. ही फाइंड्स देम टू बी इनोसेंट.
उनको वो बच्चे इस तरह से बहुत ही मासूम नजर आ रहे थे, इनोसेंट नजर आते, सीरियस, बहुत ही सीरियस नजर आ रहे थे, एंड प्लीजेंट एंड अर्नेस्ट, बहुत ही प्लीजेंट लग रहे थे और बहुत ही अर्नेस्ट लग रहे थे कि ये कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे। द बॉयज आर वेरी यूजफुल टू द नरेटर। अब वो नरेटर को लग रहा था कि ये बच्चे मेरे लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही काम के हैं। They are very willing to satisfy all that the narrator requires. क्योंकि क्यों उसको काम के लग रहे थे? क्योंकि वो नरेटर की हर ख्वाहिश, उसकी विलिंग को सेटिस्फाई करना चाह रहे थे, उसकी हर ख्वाहिश को, उसकी हर रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना चाह रहे थे। जो चाहते हैं वो उनको करने के लिए वो तैयार थे। वो बच्चे, ये बच्चे किसी भी तरह से वो जो चाहता था नरेटर वो करने के लिए तैयार थे। दे आर ऑल्सो फाउंड सेलिंग न्यूज पेपर बाय द नरेटर वन स्टॉमी नाइट। नरेटर ने देखा कि एक बहुत ही स्टॉमी नाइट यानी बहुत ही तूफानी रात थी। उस दिन उन लोग उतनी तूफानी रात में भी न्यूज़पेपर बेच रहे थे। न्यूज़पेपर देखो यहाँ पे, न्यूज़पेपर, इसी तूफानी रात में भी वो न्यूज़पेपर बेच रहे थे। ये किसने देखा? नरेटर ने देखा। सो one day when the narrator asks if he can help them in any, they say they will be very grateful if they get a lift to the nearby village Poleta. उन्होंने कहा कि अगर आप, उसने नरेटर ने पूछा कि मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ, तो उन लोगों ने बोला कि हम लोगों को आप सिर्फ लिफ्ट दे दो, पोलेटा जो शहर है वहां तक। इस तरह से लिफ्ट मांगते हैं, हम लोग गाड़ी से लिफ्ट मांगते हैं, तो बोला लिफ्ट हमको दे देना, नियर का जो विलेज है पोलेटा वहां तक हमको छोड़ दो। although it doesn't although it doesn't come in the narrator's way, he take them there। उसके रास्ते में नहीं आता था, फिर भी वो पोलेटा में इस जगह पे उनको लेकर चले गया। द बॉयज गेट डाउन इन अ बिल्डिंग, वो बिल्डिंग के पास में दो बच्चे उतर गए, एंड आस्क द नरेटर टू वेट टू वेट इन अ नियर बाय कैफे। और नरेटर को कहा कि आप ये नजदीक का जो कैफे है, कैफे हाउस है, ऐसा कैफे हाउस होता है ना, उसमें बोला कि आप हमारा इंतजार करो। और वो बच्चे इस बिल्डिंग में चले गए until they return within an hour। और वो बोल रहे कि 1 घंटे में वो वापस आ जाएंगे। ऐसे इस तरह से 1 घंटे रेत घड़ी होती है ना, बोला तो वो लोग इस बिल्डिंग में चले गए और कहा कि आप इस कैफे हाउस में इंतजार करो जब तक 1 घंटा न हो जाए। ओके, तो इस तरह से वो बच्चे उस बिल्डिंग में चले जाते हैं। ईगरनेस लीड द नरेटर टू फॉलो द बॉयज। ईगरनेस यानी तजस्सुस हो गया, उस नरेटर को क्या हो गया? ईगरनेस, तजस्सुस हो गया कि आखिर ये बच्चे कहाँ गए हैं। तो उन लोग, उसने उन बच्चों को फॉलो किया, उनका पीछा किया, टू अ प्लेस विच इज एक्चुअली अ हॉस्पिटल। उसमें गए जहाँ पे देखा तो वो एक हॉस्पिटल था। ऑन पीपिंग थ्रू अ रूम, वो नरेटर जो है वो एक रूम में से ऐसा पीप कर रहा था। कौन से रूम में से पीप कर रहा था? लेड बाय अ नर्स। नर्स से उसने पूछा कि अभी जो दो बच्चे आए थे वो कहाँ गए? तो नर्स ने बताया कि वो लोग उस तरफ गए हैं, इस तरफ। नर्स बताती है कि हम लोग उस तरफ गए। तो वहां पर जो रूम होता है वहां से वो पीप करता है, झांकता है। पीप करना यानी झांकना। तो वो पीप करता है उस रूम में से अंदर, देखता है झांक करके। तो उसको क्या पता लगता है कि वहां पर ही रियलाइज दैट boy are taking talking to a girl who resembles them। वो लड़का जो है वो एक लड़की से बात कर रहा था, रहे थे दोनों लड़के, जो उनकी तरह ही दिखाई दे रही थी। रिजेंबल्स यानी हैव अ सिमिलर अपीयरेंस। रिजेंबल मतलब हैव अ सिमिलर अपीयरेंस यानी उनकी तरह ही दिखना, उनकी तरह ही अपीयर हो रही थी, दिखाई दे रही थी। ही डज नॉट फील लाइक इंट्रोडिंग। और उसने ये पीप करके देखा ना, झांक कर देखा कि, तो उसको अच्छा नहीं लगा कि वो
उनसे बिना बोले अंदर जाए। इंट्रूडिंग यानी कम टू अ प्लेस वेयर वन इज अनइनवाइटेड। इंट्रूडिंग यानी बिना बुलाए कहीं पर जाना, घुस जाना, दाखिल होना, उसको बोला जाता है इंट्रूडिंग। एंड दस आस्क द नर्स, और उसने बाहर ही उस नर्स से पूछा, द डिटेल अबाउट द बॉयज, उन दो लड़कों के बारे में उन्होंने बॉयज से पूछा। This is when the nurse tell him their heart-rending story. और उस नर्स ने उसको उन बच्चों की हार्ट रेंडिंग स्टोरी यानी दिल दहलाने वाली कहानी बताई। कॉजिंग ग्रेट सॉरो यानी बहुत ही दुख भरी कहानी, दिल दहलाने वाली कहानी उस नर्स ने उसको बताई। अबाउट देयर फादर बीइंग किल्ड इन अ वॉर, बताया कि उनके अब्बा जो है वो वॉर में मारे गए थे, लड़ाई में मारे गए थे। एंड देयर होम बीइंग डिस्ट्रॉयड, और उनका घर जो था वो बहुत ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उनका घर जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था वॉर में, इन द वॉर। एंड देयर सिस्टर सफर फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, और उनकी बहन जो है वो बीमार हो गई थी और उसको ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन हो गया था। तो इतने सारे दुखों का सामना कर रहे थे वो बच्चे इतने दुख सह रहे थे और सारी जिंदगी की चीजें उनको पूरी करनी थी। सो इसीलिए वो है ना, कितने ग्रेट, कितने बड़े हैं वो। तो द ब्रदर लिव्स इन अ शेल्टर, वो उनका भाई जो है वो शेल्टर एंड लिटरली स्टार्व ओनली सो दैट, ये जो भाई थे वो इस तरह से शेल्टर में रहते थे। इस तरह से एक जगह पे सब लोग रहते हैं ना, उसको बोला जाता है शेल्टर। ठीक है, धर्मशाला जिसको बोला जाता है हमारे यहाँ पे, उसको बोलते हैं शेल्टर। तो वो भाई लोग जो है वो शेल्टर में रहते थे सिर्फ इसलिए, और वो स्टार्व भी करते थे, कभी कभी भूखे रहते थे, ताकि उसके पीछे मकसद क्या था, ओनली सो दैट दे कैन पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट। सिर्फ उन लोग अपने बहन के ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा कर रहे थे। सो कीपिंग अ सीक्रेट एंड हेल्पिंग देयर सिस्टर, दे हैव शोन दैट वॉर हैज नॉट शेकन देयर स्पिरिट। ये सारी चीजें हम लोग सीक्रेट रख रहे थे अपनी बहन से, वो किस तरह से पैसे कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दे हैव शोन, इस तरह से उन्होंने ये साबित कर दिया कि वॉर हैज नॉट शेकन देयर स्पिरिट। इस लड़ाई ने, इस हादसे ने, जहाँ पर उनके अब्बा मर गए, जहाँ पे उनका घर बर्बाद हो गया, तो और उनकी बहन भी बीमार है, नॉट शेकन देयर स्पिरिट, उनके किसी भी हिम्मत को पस्त नहीं कर रहे थे। उनको कोई भी उनकी हिम्मत जो है वो कम नहीं कर रहे थे। नॉट शेकिंग देयर स्पिरिट, स्पिरिट यानी हिम्मत, नॉट रिड्यूस्ड ईगरनेस टू डू समथिंग यानी कुछ करने की चाह को कम नहीं कर रहे थे। तो यही हिम्मत वालों का काम होता है। दे आर नोबल एंड जेंटल, इसीलिए उनको क्या कहा है राइटर ने, नोबल एंड जेंटल कहा है राइटर ने। द ग्रेट ह्यूमन बीइंग इन देयर ओन स्पेशल, ये जो थे ये बहुत ही नोबल थे, जेंटल थे, नोबल थे, जेंटल थे। तो यहाँ पर नोबल किसे कहा जाता है, जो बहुत ही बड़ा काम करता है, अच्छा इंसान होता है, उसे कहा जाता है नोबल मैन। ठीक है, तो बहुत ही नोबल और जेंटल थे। तो एंड ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बहुत ही बड़े ह्यूमन बीइंग थे। एंड देयर ओन स्पेशल येट सब्टल, सपल, सब्टल यानी क्या होता है, सब्टल का मतलब होता है अवे दिस, they subtle away this, just a minute, huh? They are noble and gentle and great human being in their own special yet subtle way.
है ना। सब्टल वे किसे कहा जाता है? एक मिनट, हाँ। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, miss. Yes, miss. सब्टल वे, हाँ, सबटल यानी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। ओके, सो सबटल यानी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वे, हमको ऐसे इंसान जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है। तो दिस स्टोरी डिस्टिंक्टली टॉक्स अबाउट हाउ, डिस्टिंक्टली यानी क्लियरली, साफ तौर पे, ये कहानी हमको साफ तौर पे क्या बताती है? टॉक अबाउट हाउ ट्रू द इम्प्लीफिकेशन सेज, ये जो इम्प्लीफिकेशन है वो, हाँ, ये एम्प्लीफिकेशन जो है, एम्प्लीफिकेशन यानी फोकस ऑन अ स्टेटमेंट, ये इस बात पर बहुत ही अच्छी तरह से रोशनी डालता है, एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करना यानी एम्पलीफायर होता है ना, पावर का एम्पलीफायर, तो ये इस बात पर रोशनी डालता है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर राह होती है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आप लोगों को यहाँ तक पूरी स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गई? Yes, Yes, miss. miss. Yes, miss. Yes, miss. अच्छी लगी आपको? मजा आया? Yes, miss. Yes, miss. ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन बच्चों की स्टोरी सुनकर कुछ ना कुछ इनसे सीख लेंगे और अपनी जिंदगी में भी आप लोग कुछ कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, बिकॉज मेहनत के बिना कोई चीज हासिल नहीं होती। ओके, सो आफ्टर दिस नाउ विल सी, आई विल चेक योर अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों को ये कितना सबक समझ में आया है। ओके, सो ये एक पजल है, आपको सॉल्व करना है। करोगे सॉल्व? करोगे? Yes, miss. ओके, सो वन बाय वन, सब एक साथ में नहीं बोलेंगे, वन बाय वन आपको बोलना है। पहला वर्ड है, और ये सारे वर्ड्स आपको कौन से यूज करने हैं? आपके जो लेसन में वर्ड्स आए हुए हैं ना, वही वर्ड्स को आपको यूज करना है। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज, सॉल्व द पजल करना है, वर्ड्स यूजिंग द क्लूज। डिसअलाउ, डिसअलाउ के लिए क्या लिखा हुआ है वर्ड हमारे लेसन में? नंबर वन, यहाँ पे डाउन में जाना है हमको, यहाँ पे बीच बीच के वर्ड अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। डिसअलाउ के लिए कौन सा वर्ड है? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। हाँ, मैं बताऊं फॉरवर्ड। हाँ, बताओ, यस बताओ। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, बोलो फैजान, सही बोल रहे हो, बोलो। हेलो, फॉरवर्ड। देखो ध्यान से, क्या वर्ड है वो? मिस फॉरवर्ड। Forbids. वेरी गुड, Forbid. वेरी गुड, वेरी गुड। वर्ड है फॉरबिड। क्या वर्ड है? फॉरबिड। ओके, नाउ नेक्स्ट, मेक नोन, मेक नोन, मेक नोन। Reveal. यस, वेरी गुड, इट इज रिवील, रिवील। ओके, नेक्स्ट, ही ना, आप दूसरों को भी मौका देंगे, अगर कोई जवाब नहीं देगा फिर तुम देना। ओके, ओके मिस, ठीक है। नेक्स्ट इज अनएक्सपेक्टेड मीटिंग। अनएक्सपेक्टेड मीटिंग के लिए क्या वर्ड है? देखो, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग डाउन में है, बोलो कौन बताएगा? आपके Encounter. एनकाउंटर, वेरी गुड, एनकाउंटर, वेरी गुड अरबिया। नेक्स्ट इज इन अनइनवाइटेड विजिट। अनइनवाइटेड, बिना बुलाए आते हैं ना, उसको क्या बोला गया है अनइनवाइटेड विजिट के लिए? बोलिए, 4 नंबर यहाँ पे है, चौथा अनइनवाइटेड विजिट, बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है साफ, बोलो, बोलो, दूसरा कोई बोलो, इनकी आवाज सही नहीं आ रही है, शायद ये सही बोल रही है। Intrude. इंक्लूड,
It is intrude. Very good. Very good. Next. Next is clearly pointed out. Clearly pointed out के लिए क्या word है? Clearly pointed out. बोलो. Distinctly. नहीं, यहाँ पे देखो. Clearly pointed out. Yes, yes. Very good. क्या है clearly pointed out के लिए? Distinctly. Distinct. Distinct. Distinctly नहीं है. Distinct. Okay? Clearly pointed out तो distinct. Very good. Next is difficult to find out. Difficult to find out के लिए क्या word है? S से? Subtle. Very good. Excellent. Next. Stay hungry. Stay hungry के लिए क्या word है? बोलो. Stay hungry के लिए. हंगरी के लिए भूखा, मैं बोली थी ना, भूखे रहते थे उन लोग उनके शेल्टर में. उन लोग अपने शेल्टर में भूखे भी रहते थे सिर्फ अपनी बहन के लिए. तो वहाँ पे क्या word है? Spirit. बोलो. 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 Spirit. बोलो जल्दी, क्या वर्ड है वो? जल्दी प्रोनाउंस करो. सही बोल रहे हो लेकिन प्रोनाउंस सही करो. Stress. स्टाव. क्या वर्ड है वो? स्टाव. स्टाव. हाँ, बोलो स्टाव. ओके. नेक्स्ट. ऑनरेबल एंड वाइज पर्सन को क्या बोला जाता है? जो ऑनरेबल और वाइज पर्सन होता है उसे क्या कहा जाता है? बोलो. ऑनरेबल और वाइज पर्सन होता है ना, जो बहुत अच्छा, उससे प्राइज भी मिलता है. उस नाम से प्राइज मिलता है. कौन सा? किसी साइंस. Noble. वेरी गुड. Noble. वेरी गुड. Noble. 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 So all of you, excellent job. You have given correct answers. All of you, well done. And clap your back because, and clap for yourself because you have given very correct answers. Okay. So now, what is your assignment? You have to make your own story to explain the proverb. तुमको एक कहानी बनानी है. कौन से proverb को explain करने के लिए? Where there is a will, there is a way. आपके जिंदगी में ऐसी कोई बात हुई है कि जिससे आप ये बात साबित कर सको कि where there is a will, there is a way. आपकी जिंदगी की कोई ऐसी कहानी आप बताएंगे जिससे ये प्रोवर्ब जो है ना, where there is a will, there is a way, ये चीज जो है वो साबित होगी. तो you have to make your own story. आपकी लाइफ की, आपकी जिंदगी की स्टोरी आपको लिखनी है, जिससे ये साबित होता है कि where there is a will, अगर हम चाहें तो रास्ते निकल आ सकते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल तो ये है कि अभी हम लोगों की स्कूल बंद है. हमको तो ऐसा लगा था कि खत्म, अभी तो कुछ नहीं हो सकता, हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती, हम कैसे पढ़ सकते हैं. तो देखो कैसा रास्ता निकल आ गया ऑनलाइन एजुकेशन का, है ना. हम ऑनलाइन एजुकेशन से कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं. तो ऑलवेज वेयर देयर इज अ विल, देयर इज अ वे. अगर हमारी चाह अच्छी होगी तो हमारी पढ़ाई भी अच्छी होती है. ओके. और हमारी हर काम में कामयाबी मिलती है. सो विद दिस मैं चाहूंगी कि आप लोगों का ये सारा जो हमने असाइनमेंट किया है और ये आपका जो आगे का वर्क है वो आपको कंप्लीट करना है और क्लास टीचर को भेजना है. ओके. सो विद दिस आई थैंक यू ऑल. मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने पूरा लेसन बहुत अच्छे से सुना और बहुत ही अच्छे से जवाब दिए. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, miss. बाय बाय. सब लोग वीडियो ऑन करो.
तुम्हारे पति जिंदा है। हेलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज। सब लोग वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। अस्मा, साहिबा, नफीस, कनीस। ओके चलो, अल्लाह हाफिज। वेरी गुड।